مکہ میں مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب صحیح دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے 3 سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی۔ اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شانق گزری اور آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت دی گئی، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ اس کو کل کروں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجیے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجیے۔ آپ بھول جائیں تو آپ اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اس بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا، جبرائیل تم اتنی مدت سے میرے پاس آنے سے رک رہے ہو، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے
और ये लोग हज़रत ईसा के दीन पर थे। लेकिन बाज़ रवायत से ये भी मालूम होता है कि ये वाक़या हज़रत ईसा से पहले का है। इसलिए ये सवाल यहूदी ने पूछे थे और उसका मतलब ये है कि यहूदियों की किताब में ये वाक़या मौजूद था। उससे यही साबित होता है कि ये वाक़या हज़रत ईसा से पहले का है। कौम ने उनकी मुखालफत की और लोगों ने सब्र किया। उस ज़माने के बादशाह का नाम वक्यानुस था। वो मुशरिक था, उनने सबको शिरक पर लगा रखा था भी बहुत जालिम, बुत परस्ती करता था। वहाँ सालाना मेला लगता था। ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ उस मेले में गए। वहाँ उन्होंने बुत परस्ती होते देखी। ये वहाँ से बेजार होकर निकल आए और सब एक दरख्त के नीचे जमा हो गए। उससे पहले ये लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए। उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर की। रफ्ता रफ्ता मुशरिक कौम को उनके बारे में पता चल गया। वो उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने निहायत दिलेरी से शिर्क से बरी होने का ऐलान किया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। उन्होंने साफ कह दिया हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और ये नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी इस साफ गोई पर बादशाह बिगड़ा। उसने उन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर ये बाज ना आए तो मैं उन्हें सख्त सज़ा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमज़ोरी पैदा नहीं हुई। उनके दिल और मजबूत हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे। इसलिए उन्होंने सबको छोड़कर वहाँ जाने से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। उनसे फरमा दिया गया जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल करो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी, वो तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमा देगा। बस ये लोग मौका पाकर वहाँ से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए। कौम ने उन्हें हर तरफ तलाश किया लेकिन वो ना मिले। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके देखने से आजिज़ कर दिया। बिल्कुल इसी किस्म का वाक़या हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था जब आपने हज़रत अबू बकर के साथ गारे सूर में पनाह ली थी। लेकिन मुशरिकीन गार के मुंह तक आने के बावजूद आपको नहीं देख पा सके थे। उस वाक़े में भी चंद रवायात में तफसील इस तरह है कि बादशाह के आदमियों ने उसका ताक़ुब किया था और गार तक पहुँच गए थे, लेकिन गार में वो लोगों को नज़र नहीं आए थे। कुरान करीम का ऐलान है कि उस गार में सुबह व शाम धूप आती जाती थी। ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला ने उन्हें करवटें बदलाते रहे। उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत का कामला से उन्हें सलाह दिया उसी तरह उन्हें जगा दिया। वो 309 साल तक सोते रहे। 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे। उनके बदन, खाल, बाल, गर्द हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या न हुई थी। वो आपस में कहने लगे क्यों भाई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे हैं? एक ने जवाब दिया 1 दिन या उससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो 1 दिन या उससे कम सोए हैं। फिर एक ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह को है। अब उन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाज़ार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, उनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। एक ने कहा हम में से कोई पैसे लेकर बाज़ार चला जाए और खाने की कोई पाकीज़ा और उम्दा चीज़ ले आए और जाते और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नज़र उस पर ना पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नज़रों में ना आए। अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं, वक्यानुस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिरते रहे होंगे। चुनाचे उनमें से एक गार से बाहर निकला, उससे सारा नक्शा ही बदल नजर आया। अब उससे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। उसने देखा कोई चीज़ अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जानने पहचानने नजर न आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था, सोच रहा था कि कल शाम तो हम इस शहर को छोड़ कर गए हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया है। जब ज़्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फैसला किया मुझे जल्द जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए।
आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उसके सिक्के को देखकर हैरान ज़दा रह गया। उसने वो सिक्का साथी वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई ज़रा देखना ये सिक्का किस ज़माने का है। उसने दूसरे को दिखाया। उस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहाँ जमा हो गए। आखिर उन्होंने उससे पूछा, तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में उसने कहा, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। कल शाम ही को तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह वक्यानुस है। वो सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। वहाँ उससे सवालात हुए। उसने तमाम हाल कहा सुनाया। बादशाह और सब लोग उसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चुनाचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि वक्यानुस की बादशाहत ख़त्म हुए 3 सदियां बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल उन नौजवानों ने अपनी बकाया ज़िंदगी उसी गार में गुजारी और वहीं वफ़ात पाई। बाद में लोगों ने उनके एजाज़ के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तमीर की थी। एक रवायत ये भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुँचा तो उसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर उन्हें खबर दूँ। अब ये उनसे अलग होकर गार में दाखिल हुआ। साथ ही अल्लाह ने उन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और उसके साथियों से तलाश करते रह गए। ना वो मिला और ना ही वो गार नज़र आया। अल्लाह ताला ने उनकी नज़रों से गार को और उन सब को छुपा दिया। उनके बारे में लोग ख्याल जाहिर करते रहे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, या वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। बहरहाल उनकी गिनती का सही इल्म अल्लाह को ही है। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, उनके बारे में ज़्यादा बहस ना करें और ना उनके बारे में किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं। कोई सही दलील उनके पास नहीं।